Good morning, students. From today, we are going to start the second part of our chapter 2, that is the capacitors, right? So, in this chapter, in this part of the chapter, we are going to study about the capacitor, the types of capacitor, and what do we mean by the term capacitance of a capacitor. Okay, इस चैप्टर में हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर्स की कैपेसिटी और किसी भी नॉर्मल कंडक्टर की कैपेसिटी, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, सो टू स्टार्ट this, let us have a brief discussion over the terms given here, that is the conductors, insulators and the semiconductors. All of you must be familiar with the terms conductors and insulators, right? आपने conductors और insulators के बारे में तो पढ़ रखा होगा already. Now here one extra term is given to us, that is the semiconductors. So let us have a brief discussion over all these three terms. First one is conductor. What do we mean by the term conductor? We all know that those substances which can conduct electricity are called as good conductor of electricity, right? वो substance जो अपने अंदर से electricity को pass through होने देते हैं, that are called as the conductors. और अगर हम इसको थोड़ा सा precisely समझें, so we can call that, we know that वो ही substance electricity को conduct करते हैं जिनमें number of free electrons ज़्यादा हो, right? सो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स, राइट? कंडक्टर्स के एग्जांपल हो जाएंगे Ag and Cu, that is silver and copper. Silver is the best conductor of electricity and copper is also a good conductor of electricity. So conductors ऐसे substances जिनमें number of free electrons जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, that are called as the conductors. Now second term insulator is given to us. Insulators obviously ऐसे substances जो अपने अंदर से electricity को pass through नहीं होने देते हैं उनको हम बोलते हैं insulators. और इस जो हमने कंडक्टर में पढ़ा उसी का जस्ट अपोजिट इंसुलेटर में हो जाएगा कि जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अबंडेंस में ना हो और सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड हो तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, राइट? और वी कैन से दैट ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड रहता है, कंप्लीटली फिल्ड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स. So basically insulators are those substances which do not have free electrons, right? They are called as insulators. Insulator का example हो जाएगा हमारा glass, wood, rubber, etc. है ना? All these things are the insulators because they do not conduct the electricity. Now there is a term given here, that is the semiconductor. This is a new term for all of us. So what do we mean by the term semiconductors? Obviously यहाँ आप नाम से समझ में आ रहा है, semi means आधा और conductor means obviously the conductor. So semiconductor का मतलब ऐसे substances जो कभी कभी as a conductor behave करें और कभी as an insulator behave करें, उनको हम बोलते हैं semiconductors, right? ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी पार्शियल हो, मतलब कभी वो एज अ कंडक्टर बिहेव करें और कभी एज एन इंसुलेटर बिहेव करें, दे आर कॉल्ड एज द सेमीकंडक्टर्स. और ये जो कंडीशन होती है उनके कंडक्शन की, दैट कंडीशन बेसिकली उन सब्सटेंसेस की जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. मतलब जब हम इन कंडक्टर्स को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेंगे और अगर टेम्परेचर उससे कम या ज़्यादा हुआ तो वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करेंगे, राइट? सो ऐसे सब्सटेंसेस जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, राइट? Ge and Si, that is germanium and silicon, are the most commonly used semiconductors. We have one complete chapter of semiconductors
राइट जो हमारी लास्ट यूनिट है वो पूरी सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे हमको सिर्फ इतना समझना है कि सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कंडक्शन शो करते हैं, अदरवाइज दे बिहेव एज एन इंसुलेटर। और जो मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स हैं होते हैं दैट आर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ओके, नाउ एक टर्म आती है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जो हमारा टॉपिक भी है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। ऑब्वियसली कैपेसिटी वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि किसी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मतलब कोई कंडक्टर कितने चार्जेस को होल्ड कर सकता है वो होती है उसकी कैपेसिटी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, राइट। ये कोई कंडक्टर है, इसमें मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है टू होल्ड अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ चार्जेस। इसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्जेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर हम इसमें चार्ज को एक्यूमुलेट करना चाहेंगे या चार्ज को इंड्यूस करवाना चाहेंगे तो इट विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द अनदर चार्ज बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, राइट। सो हर एक कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है टू होल्ड द नंबर ऑफ चार्जेस, right? So what is that capacity, or how can we mathematically express that capacity, that we are going to see now. Okay, so we know that one relation जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, right? मतलब the amount of charge given to a conductor is directly proportional to the potential difference, the electric potential of that surface, right? किसी भी कंडक्टर को हम जो चार्ज दे सकते हैं वो चार्ज किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है उस सरफेस के, राइट। सो द Q इज प्रोपोर्शनल टू V, दिस रिलेशन वी ऑलरेडी नो। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस इक्वल हियर, है ना। हमको यहाँ पे इक्वल टू लगाने के साथ साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज बेसिकली C, और ये C जो है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। दिस C इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। ओके, सो बेसिकली Q इज इक्वल टू CV इज द रिलेशन, और यहां से अगर हम C की वैल्यू निकालें सो C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। ये होता है रिलेशन बिटवीन C, Q एंड V, दैट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। किसी बॉडी को कितना चार्ज दिया जा रहा है डिवाइडेड बाय उस बॉडी का पोटेंशियल कितना है, उन दोनों का जो रेशो होगा दैट विल रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। कैपेसिटी को मेजर करने की ऐसा यूनिट होती है फेराड। जैसे हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, वैसे ही कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज फेराड। ओके, सो द ऐसा यूनिट ऑफ capacity is farad, or we can define here electrical capacitance is equal to charge upon में electric potential, right? हम इसको अगर एक्सप्रेशन इसको अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। Also students, from here we have to define the 1 farad capacity, right? हमको यहाँ पे 1 farad capacity को define करना पड़ेगा। So 1 farad capacity is equal to electric potential की ऐसा यूनिट होती है 1 volt, और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, right? So we get 1 farad is equal to 1 coulomb upon में 1 volt. This will be equal to 1 farad.
नाउ हम 1 फेराड कैपेसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है और आप उसको 1 कूलम चार्ज दे रहे हो, देन इट्स कैपेसिटी इज सेड टू बी 1 फेराड। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है और हम उसको 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं, तो इट्स कैपेसिटेंस और कैपेसिटी इज सेड टू बी 1 फेराड। एक्चुअल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो 1 फेराड होता है वो एक ह्यूज अमाउंट होता है कैपेसिटी का। तो अगर हम इस कैपेसिटी को शॉर्ट टर्म्स में मेजर करना चाहें, इसकी छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर करना चाहें, तो जनरली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हमारे पास वैल्यूज आती हैं 1 मिली फेराड, 1 माइक्रो फेराड और 1 पिको फेराड। ठीक है, तो हमको ये कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए कि 1 मिली फेराड कितना होता है, 1 माइक्रो फेराड कितना होता है और 1 पिको फेराड कितना होता है। सो 1 मिली फेराड इज बेसिकली 10 to the power minus 3 farad, 1 microfarad is 10 to the power minus 6 farad, and 1 picofarad is equal to 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 farad, और आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 10 to the power minus 12 farad। ओके, इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि हम इसको 1 पिकोफेराड को अगर हमको माइक्रो में कन्वर्ट करना हो तो 1 पिकोफेराड इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 माइक्रो फेराड, राइट। तो हम इसको माइक्रो फेराड की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, वी हैव टू लर्न दीज वैल्यूज, मिली फेराड की, माइक्रो फेराड की और पिको फेराड की। ओके, so in this way we can define the term capacity or capacitance. Now our next topic is Now the next topic is capacity of a spherical conductor. Okay, obviously नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके एक spherical conductor है। ठीक है, एक ऐसा कंडक्टर जिसका शेप जो है वो spherical है। एक spherical कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी, मतलब वो कितने चार्जेस को होल्ड कर पाएगा, बेसिकली दैट वी हैव टू फाइंड, राइट। हम मान लेते हैं एक spherical कैपेसिटर जिसका सेंटर हो गया O, जिसकी रेडियस हो गई स्मॉल r। ठीक है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r। सपोज इट कैन होल्ड प्लस Q चार्जेस। ठीक है, इसमें जो चार्जेस आ सकते हैं वो कितने, हम मान लेते हैं कितने चार्जेस आ सकते हैं, Q चार्जेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a spherical conductor is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R, right? This thing we have already derived in our potential वाला part जो है chapter 2 का, उसमें हम already ये चीज derive कर चुके हैं that V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R. You can recall it. So also we know that Q is proportional to V or Q is equal to CV. This thing we also know. बेसिकली हमको निकालना क्या है, कैपेसिटी, मतलब इस C की वैल्यू। तो इस C को इधर ही रहने देते हैं, V को इधर नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा C is equal to Q upon V। अगर मैं V की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पे पुट कर दूं, सो आई विल गेट C is equal to Q upon में V की जगह पे आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R। जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड वी विल गेट C is equal to 4 pi epsilon naught, ये वाला Q as it is into R as it is divided by, ये डिनोमिनेटर वाला जो Q है वो नीचे ही रहेगा, like this। जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं वो ऊपर चली गई और ये वाला Q यहीं पर रहा as it is। ये Q से Q कैंसल एंड वी विल गेट C is equal to 4 pi epsilon naught into R. This is the expression for the capacity of a spherical conductor. एक spherical conductor की capacity के लिए this will be the expression. Okay? So basically we can say that कोई भी spherical capacitor अपनी radius का
4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्जेस को स्टोर कर सकता है, राइट। कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर अपनी रेडियस के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज को स्टोर कर सकता है। एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट। हमको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो अगर मुझे यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली इसको इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दो, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन 9 दैट इज 1 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सो अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो यू कैन पुट द वैल्यू फ्रॉम हियर इन दिस एक्सप्रेशन, ओके। और यहाँ पे हम इसकी एसआई यूनिट लगा देते हैं, दैट इज फेराड। तो कैपेसिटी की एसआई यूनिट हो गई फेराड एंड दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर the charge that can be stored in a spherical conductor। एक spherical conductor कितने charges को hold कर सकता है, उसकी क्या capacity होती है, उसके लिए this is the expression, okay। Now our next topic is principle of capacitor और condenser। एक नॉर्मल कंडक्टर भी जो होता है वो चार्जेस को स्टोर कर सकता है और जो कैपेसिटर होते हैं वो भी चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, बट दोनों में ऑब्वियसली कुछ डिफरेंस होता है, तभी हमने दोनों का अलग अलग नाम लिखा, कंडक्टर और कैपेसिटर। तो एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंस होता है दैट वी विल सी, और क्यों हम कैपेसिटर को यूज करते हैं टू स्टोर द चार्ज रेदर देन अ कंडक्टर, दैट ऑल्सो वी विल सी, ओके। सो देखने में एक नॉर्मल कैपेसिटर और एक कंडक्टर दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, दोनों का साइज सेम होता है, बट जो कैपेसिटर होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर इन द वे दैट instead of having the same dimension as that of a conductor it can store more charges as compared to that of conductor, ठीक है। मतलब एक कंडक्टर का जो शेप एंड साइज होता है वो सेम एज अ कैपेसिटर होता है, बट जो कैपेसिटर है वो कंडक्टर से ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकता है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर पाए। अब वो कैसे होता है दैट वी विल सी, ओके। फॉर दिस लेट अस कंसिडर एक सिंपल सी हमने प्लेट कंसिडर की, इट इज अ मेटेलिक प्लेट। सपोज वी हैव गिवन सम चार्जेस टू दिस मेटेलिक प्लेट, हमने यहां से इसको कुछ चार्जेस दिए, पॉजिटिव चार्जेस, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऑब्वियसली इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो द पॉजिटिव चार्जेस विल गेट एक्यूमुलेट ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ अ मेटेलिक प्लेट। अभी ये जो मेटेलिक प्लेट है इट इज अ नॉर्मल कंडक्टर, ठीक है, ये जो है ये एक नॉर्मल कंडक्टर है जिसको हमने चार्जेस दे दिए। अब इसी नॉर्मल कंडक्टर को हम कैपेसिटर कैसे बनाते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, ओके। तो इसी नॉर्मल कंडक्टर को कैपेसिटर बनाने के लिए, मतलब इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास में एक नॉर्मल कैपेसिटर एक अनचार्ज्ड प्लेट हमने रख दी, ठीक है। ये प्लेट जिसको हमने चार्ज कर दिया पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में मैंने एक अनचार्ज्ड प्लेट रख दी, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ओके। सो हमने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। इंडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इंडक्शन के कारण वी नो दैट सिंस इस प्लेट ए के आउटर वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बी के इनर वाली प्लेट पर इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएंगे, राइट, बाय इंडक्शन। सो व्हाट वी हैव डन, एक प्लेट ली, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ड्यू टू इंडक्शन उसके पास में एक अनचार्ज प्लेट रख दी बी, इस अनचार्ज प्लेट बी पर क्या होगा, इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण इस वाली फेस पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, और इस ऑब्वियसली सिंस जो पूरा सिस्टम है हमको उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब जितने नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हुए हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो उसके अपोजिट साइड इंड्यूस हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से
प्लेट बी के एक साइड नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस इस ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, बट उसी के साथ साथ ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इस ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब इसके पहले हम देख लेते हैं कि कैपेसिटी और पोटेंशियल का आपस में क्या रिलेशन है। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q अपॉन V। That means if charge is taken to be constant then C is proportional to 1 upon V। इसका मतलब अगर पोटेंशियल ज्यादा तो कैपेसिटी कम और अगर पोटेंशियल कम तो कैपेसिटी ज्यादा, राइट। मतलब पोटेंशियल और कैपेसिटी दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब अगर मैं किसी तरह से इस प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज कर दूं तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और ये नेगेटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं, इस ए के पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हैं, बट ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस ए के पोटेंशियल को अगेन बढ़ा दे रहे हैं। मतलब अगर मैं किसी तरह से इन पॉजिटिव चार्जेस को हटा दूं तो प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और जब प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो मुझे इन पॉजिटिव चार्जेस को यहां से हटाना है ताकि ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए। सो इस ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन पॉजिटिव चार्जेस को मैं क्या करता हूं, अर्थिंग कर देता हूं, राइट। जब मैंने इसको ग्राउंड कर दिया या इसकी अर्थिंग कर दी तो ये पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में चले जाएंगे। अब इस प्लेट पर केवल नेगेटिव चार्ज है, राइट। और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, इस प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे और जब इस ए का पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दिस वे मैंने इस ए के डायमेंशन को चेंज नहीं करा, उसका शेप उतना ही रखा, बट उसकी कैपेसिटी को मैंने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, राइट। इसका मतलब जितने चार्जेस पहले ये स्टोर कर पा रहा था अब उससे ज्यादा चार्जेस ये स्टोर कर पाएगा। इन दिस वे आई कैन कन्वर्ट अ नॉर्मल कंडक्टर इनटू अ कैपेसिटर बाय पुटिंग an uncharged plate in its near to it, and then by induction the negative charges get accumulated here और ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी और इस तरीके से एक नॉर्मल कंडक्टर जो है वो कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। This is basically the working principle of a capacitor, okay? Now capacitor का जो सिंबल होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है ये, ठीक है। We can denote capacitor by this symbol। ये जो सिंबल है it is basically representing the two plates, right? ये दो प्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से हम कैपेसिटर को सिंबलाइज कर सकते हैं। This is the symbol for a capacitor, okay? So students, today we have seen कि एक नॉर्मल कंडक्टर और एक कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है और एक नॉर्मल कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करता है और कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करता है, बट हाउ कैन वी कन्वर्ट अ नॉर्मल कंडक्टर इनटू अ कैपेसिटर, दिस थिंग वी हैव आल्सो सीन। और बेसिकली एक कैपेसिटी की टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूला में और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, दैट आल्सो वी हैव सीन दैट द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैराड, ओके। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ये तो हमने एक नॉर्मल कैपेसिटर देख लिया, अब प्लेट्स के डायमेंशन को हम चेंज करके देखेंगे। यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर प्लेट्स ली, अगर हम प्लेट सर्कुलर लेते, सिलेंड्रिकल लेते तो उसकी कैपेसिटी पे और कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट क्लास। दैट इज द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।